हर एक मार्केट में दो प्लेयर्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे ओला उबर हो गई, राइट, एंड स्विगी जोमेटो हो गई। तो आपके प्लेयर में एक ही बड़ा प्लेयर था, तो थे 2-3 थे, अच्छा, बट पीपल शट डाउन। यू वोंट बिलीव, इंडिया में 15,000 करोड़ अटका हुआ है जस्ट बिकॉज बेनिफिशियरीज नहीं है मेंशन्ड, बिकॉज बेनिफिशियरी को पता ही नहीं कि उसको पैसा मिलना है, जो भी मर गया है या कुछ हो गया है। सो दैट वाज द प्रॉब्लम वी वांटेड टू सॉल्व। आई थिंक वन ऑफ द मेजर कॉम्पिटिटर कैम स्कैनर था। वही था मेजर, वही था मार्केट में, और कोई कुछ यूज नहीं करता था। तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं अर्बन कंपनी के साथ मर्ज कर लेता वी हूँ? ट्राइड, बट तो अगर मैं मार्केटिंग की बात करूँ, आपकी मार्केटिंग टेक्निक्स क्या क्या है? सिंपल मार्केटिंग, इजी टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग। जब शट होती है कंपनी तो पैसे मांगते हैं इन्वेस्टर्स। मैं अगर बात कर रहा था एक फाउंडर से, आकाश, जिप इलेक्ट्रिक के फाउंडर है। ओके, तो उन्होंने बोला कि कोई भी बड़ा आइडिया होता है उसको कॉपी करो एंड वो चलेगा ही। तो आपके भी काफी सारे कॉपी कैट्स आते होंगे, तो आप उनके साथ कैसे डील करते हो? अगर मैं बात करूं कि आपका एक सक्सेस मंत्र क्या है? फॉर मी इट इज Hi guys, this is Shranj Goyal. Welcome to my YouTube channel. So today we have a very special guest with us, who is none other than Gaurav. He is the founder of Kagas. So hi, how are you? गुड यार, हाउ आर यू? I am also doing good. ग्रेट। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताओगे? I come from a very small town in Chhattisgarh called Mahasamund. Okay, It's a very small town near the capital Raipur, okay, an hour from Raipur, I would say. okay, Studied there, then studied in Raipur, okay. then went on to do my BTech from IIT Kanpur. वहाँ पर I spent the best 4 years of my life. Did engineering from there, in material science and engineering I did. I was a part of the cultural festival organizing team of Kanpur as well, Antaragni, which is considered one of the biggest cultural festivals, college cultural festivals in India. I was a part of that, handled pro shows over there, basically. बड़े आर्टिस्ट बुलाओ, शो करवाओ, वो काम था मेरा वहाँ पर। कौन से ईयर में था? This was 2010 to 14. I was in IIT Kanpur. Okay. 12-13 में basically अंतराग्नि में मैं involved था. I was also part of the music club there, Okay. where I played keyboards and drums. So that has been the college journey. उसके बाद And you did your college in which branch? material science and Material engineering. science, okay. Yes. Then बीच बीच में intern भी किए दो मैंने, finance interns थे वो. So after that, I got my first job in Credit Suisse Okay. as an analyst in investment banking, where I spent 15 months. And then I started my first company along with Snehanshu. That was TapMe. It was on-demand home services, where we were doing something very similar to Urban Company, but in tier 2 cities. Okay. We were in Jaipur, Vizag, Patna. And which year was that? This we started in 2015. Okay. Urban Company was 2014. So we started 2015. We started in tier 2 cities because both of us come from I come from a tier 3-4 city. He comes from Udaipur, tier 2 city. So we felt that इन शहरों में भी बहुत ज़्यादा गैप है और पैसा भी है. इट्स नॉट कि पैसा नहीं है. रायपुर जैसे शहर में बहुत पैसा है, लोग दे देंगे अगर आप उनको अच्छी सर्विस दोगे. So same we felt for cities like Vizag, Jaipur, Patna, and we did good there. मतलब I won't say कि we were doing bad, but whatever reasons, funding constraints and everything, we couldn't raise a follow-on round, and we had to shut it down after 4 years. Okay. So in 2019, we completely shut it down. Then we started So working. you did it from 2015 to 2019. Yes, 4 years we Okay. spent in that company. And why did you shut it down? Funding constraints majorly. Okay. मतलब हमने पहले एक फंडिंग सिक्योर कर ली थी, जिससे हमने बेस बना लिया एक. We wanted more funding to make that base bigger, but we could not raise that round. So we had to shut it down. Otherwise, so building on-demand home services, something like electrician, plumber, carpenter on call, you need a certain amount of capital. Right. नहीं तो Capital intensive रहता है. बहुत इंटेंसिव है. मतलब you need certain amount of capital to become that break even thing. तो break even thing hit करने के लिए you need it. So इसलिए we could not raise that round and we had to shut it down. But I think काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि कोविड भी नहीं आया था उस टाइम. Right. तो आपने रीच आउट नहीं करा काफी लोगों को? बहुत लोगों को किया. Okay. But if you won't believe, when we started TapMe, it was called TapMe.
there were around 300, 400 companies in the market. In smaller Doing the same cities, thing. same thing. Smaller cities, bigger cities, 300 नहीं तो भी 100 होगी यार, उससे कम नहीं होगी, 100 से कम नहीं होंगी. अलग अलग छोटे स्टार्टअप, बड़े स्टार्टअप, इतने स्टार्टअप्स के नाम है मेरे पास जो याद है मेरे को. आई डोंट वांट टू नेम एवरीवन, बट बहुत थे. व्हेन वी शट डाउन ओनली अ फ्यू रिमेन. ओके. क्योंकि वो सेगमेंट इतना कैपिटल इंटेंसिव था कि बहुत कम लोगों को ट्रस्ट था कि लोग सॉल्व कर पाएंगे इसको. प्लस पिलफ्रेजेस बहुत होते हैं उसमें. So how did Urban Company grow big? Urban Company had raised good money, firstly. Second, they identified those triggers कि दिल्ली में ब्यूटी बहुत अच्छा, like beauty would be a good anchor category. We could not identify that. That was also a problem कि हम लोग सिर्फ होम में रह गए, हम और चीजें नहीं ट्राई किए ज्यादा क्योंकि पैसे नहीं थे हमारे पास. पैसे एक लिमिट में थे हमारे Okay. पास. So जितनी भी चीजें ट्राई करनी होती है, you need certain capital. If you don't have that capital, you can't try everything. राइट. तो मैं अचानक से ये बंद करके वो चालू नहीं कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव बिल्ट माई ब्रांड फॉर दैट पर्टिकुलर वर्टिकल. अब लोग टैपमी से रेजोनेट करने लगे थे इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर, अचानक से मैं वो बंद करके ब्यूटी नहीं चालू कर सकता. उनको सब बदलना पड़ेगा, कंपनी का पूरा विजन बदलना पड़ेगा. और इफ आई हैव सर्टेन कैपिटल देन मैं एक वर्टिकल इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ. मेरे पास वो नहीं था. वी डिडंट हैव दैट एडिशनल मोर कैपिटल दैट वी वांटेड. सो दैट्स व्हाई वी कुडंट ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स आल्सो. हमको वहीं पर स्टिक करना पड़ा एंड विद द होप कि हो जाएगा जो नहीं हुआ इवेंचुअली. ओके. सो दैट्स व्हाई या आई थिंक अगर मैं एक बात करूं कि अर्बन कंपनी ने पहले कैपिटल उठा लिया, राइट, तो वो कैपिटल हैवी हो गया. राइट. तो अगर कैपिटल आपका इंटेंसिव नहीं था तो आप ये बताओगे कि आपने क्या क्या चीजें करी, मतलब क्या क्या चीज आपके लिए वर्क नहीं करी, आप क्या डिफरेंटली करते तो आपको कैपिटल रेज करने के लिए मिल जाता. क्या डिफरेंटली करते यार, इसका आंसर तो एक इन्वेस्टर दे सकता है. आई वुड से हम तो हमेशा लगता था कि पैसे मिल जाने चाहिए हमको, बट एक इन्वेस्टर कैन आंसर इट मच बेटर. बट व्हाट आई थिंक वी कुड हैव डन मे बी बेटर इज कि सिटी आइडेंटिफिकेशन कुड हैव बीन बेटर. कि यहाँ ना करें, यहाँ करें. जैसे अब हमने विशाखापट्टनम किया, दो इट्स अ ग्रेट सिटी, ग्रेट कस्टमर्स, बट लैंग्वेज बैरियर था एक. आई कम फ्रॉम अ हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, और वहां पर जाके सबसे बात करना, दो पटना वॉज गुड फॉर अस. पटना में काफी कुछ हम बेटर कर पाए, समझ पाए ज्यादा सिटी को, लोगों को समझ पाए. तो सप्लाई और फिर क्या हो जाता है, यू ट्रस्ट ऑन सर्टेन पीपल जस्ट बिकॉज किसी ने बोल दिया. एंड वी ट्रस्टेड ऑन अ फ्यू कंपनीज कि यहाँ से ये हो जाएगा, बट दैट डिडंट फॉल कम थ्रू. वो ट्रस्ट वाला पार्ट भी था कि मतलब जो एक वो कहावत है ना कि डोंट बिलीव अंटिल द मनी इज इन द अकाउंट. Right. That happened on a lot of fronts for us. We believed before things actually happened. So that also pushed us कि भाई नहीं हो पाया हमसे वो पार्ट, नहीं क्रैक कर पाए हम वो. So ये बहुत जरूरी है कि मैं तो हर फाउंडर को ये बोलता हूँ कि यार जब तक पैसे नहीं आ जाए मेरे को मत बोलो फंड रेज हो गया है. पैसे अकाउंट में आ जाने चाहिए, चाहे कितने भी लेटर साइंड है, कोई अग्रीमेंट साइंड है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है अनलेस इट्स इन द अकाउंट. ओके. वैसे ही और भी कमिटमेंट्स कि यार इस कंपनी ने बोल दिया मैं ये कर दूंगा तुम्हारे लिए, तब तक मत बिलीव करो जब तक एक्चुअली हो जाए वो. फॉर एग्जाम्पल कोई आपको बोल रहा है कि यार मैं आपको स्टूडियो दे दूंगा शूट करने के लिए, नेक्स्ट 7 दिन आपका ही स्टूडियो है ये, लेकिन जब तक वो चाबी ना दे दे मान मत जाओ उसको. राइट. समथिंग लाइक दैट. सो या. तो आपने इन्वेस्टर्स ने आपको क्या मैसेज का रिप्लाई करा कि क्यों नहीं दे रहे? इन्वेस्टर्स से मेन ये हुआ था कि एक तो leader was established. A big leader was established with a big war chest, war money की है, there's already there. तो छोटा इन्वेस्टर कोई भी आके सोचता है कि यार मेरे 5 करोड़ से क्या ही हो जाएगा अब, क्योंकि वहां तो the big daddy of all is sitting, right? So वो एक हो जाता है. सेकेंड हो जाता है कि they didn't trust कि tier 2 सिटी हो सकता है, तब नहीं ट्रस्ट था. वेरी वेरी अर्ली डेज. इंटरनेट भी तब उतना बढ़िया नहीं था कंपेयर टू जो आज है. ऐप बेस्ड नहीं था उतना, हमारा कॉल सेंटर बेस्ड था. तो इंटेंसिव थोड़ा ज्यादा था हमारा बिजनेस कंपेयर टू अदर्स इन द गेम, क्योंकि टीयर 2 सिटी के अलग इश्यूज थे थोड़े तब, कि लोग पीपल आर नॉट ऑन द मोबाइल दैट मच कंपेयर टू व्हाट दे आर टुडे. सो सब कॉल सेंटर से चलता था मेजरली. ऐप बुकिंग्स वर जस्ट 10-20% out of the net. If we were doing 100 bookings a day, only 20-25 came from web or app. 75 के लिए कॉल सेंटर की जरूरत थी.
प्लस टीयर 2 सिटी की अंडरस्टैंडिंग, लोगों की अंडरस्टैंडिंग कम थी कंपेयर टू अ टीयर 1 सिटी। तो वो सब इश्यूज, मतलब आई गेस आई कैन से वी वर अ बिट अर्ली फॉर अ टीयर 2 सिटी टू डू दैट Okay. बिजनेस। और हम टीयर 1 में एक मोट बना लेते फिर जाते तो मे बी चल जाता। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कुड हैव बीन डन बेटर, बट यू कांट से एनीथिंग विद सर्टेनिटी कि यार ये कर लेते तो हो जाता। ऐसा नहीं होता है कभी भी। Okay. वो तब का इक्वेशन, तब का अंडरस्टैंडिंग क्या होता है वो तब वैसे ही पता चलता है मेजरली। Okay. या तो मैं कल एक फाउंडर से बात कर रहा था एंड उन्होंने बोला कि हर एक मार्केट में दो प्लेयर्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे ओला उबर हो गई राइट। एंड स्विगी जोमेटो हो गई। तो आपके प्लेयर में एक ही बड़ा प्लेयर था तो थे फिर 2-3 थे, अच्छा। बट पीपल शट डाउन। ओके। बहुत जल्दी जल्दी बंद हो गए। यू कैन गूगल देम, कौन कौन बड़े बड़े प्लेयर थे। मतलब ऐसा नहीं, हम तो बहुत छोटे प्लेयर थे अच्छा। कंपेयर टू देम। ओके। सो देयर वर 2-3 बिग प्लेयर्स। ओके। Obviously UC was the best ओके। among them. That's why they survived till now. Great ओके। founders, great ethics, great company. So that's why they survived. बाकी बंद हो गए। मतलब they were. You can just Google and you'll find a lot of names coming up who have raised $5 million, $10 million, $15 million. सब बनाया, सब उठाया था, but नहीं चल पाए वो सब। ओके। एक तो ही सरवाइव कर पाया फिर। तो So, इस yeah. इंडस्ट्री में अगर ऐसा कुछ होता है तो फाउंडर्स को ये नहीं होता है कि एक बड़ा लीडर है तो उसके साथ मर्ज कर लेता है। तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं अर्बन कंपनी के साथ मर्ज कर लेता We हूँ? tried, but 4 साल दे दिया था यार। ओके। बहुत हो गया था। इट वाज लाइक अब और नहीं कर पाऊंगा मैं ये बिजनेस, क्योंकि हम we couldn't crack it. Basically, that was the baggage also with us. So just for a job, just for something bigger, मैं नहीं कर पाता वो। हम दोनों नहीं कर पाते बेसिकली। बोथ ऑफ अस वर लाइक यार अब नहीं हो पाएगा ये। वी वांट टू डू समथिंग एल्स। तो इसलिए वी वेंट कि भाई आप कर लो, बट जो भी लोगों के पास हम गए दे वर लाइक कि तुम भी करोगे ना यार। मैं हम लोग का थोड़ा बैटरी डाउन हो गया था ऑनेस्टली। ये सेक्टर में अब नहीं कर पाएंगे। वॉट एवर वी हैड सीन, वॉट एवर इशूज वी हैड फेस्ड, आई कांट नेम एवरीथिंग, बट वॉट एवर वी फेस्ड हम नहीं कर पाते फिर। ओके। सो वी वर लाइक यार अब बंद कर देते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक, स्टार्ट समथिंग एल्स, और थिंक ऑफ समथिंग एल्स। सो या। फिर आपने क्या किया 2019 में? सो 19 में वी वर शटिंग इट डाउन। हमने इन्वेस्टर्स को बोल दिया था कि हम अगले 6 महीने में बंद करना चाहते हैं। दे वर ऑल्सो ओके विथ इट। दे वर लाइक कि जो भी लॉस है मिनिमलाइज करो, ट्राई टू सेल इट और व्हाटएवर। सो यू आर ट्राइंग दैट तो ड्यूरिंग। मैं या इसमें एक चीज और समझना चाह रहा हूँ कि जैसे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करा था इस कंपनी में तो उन्होंने पैसे मांगे, जब शट होती है कंपनी तो पैसे मांगते हैं इन्वेस्टर्स? नहीं, बिकॉज वी वर अपडेटिंग एवरी क्वार्टर, एवरी मंथ कि ओके। ये स्टेटस है अभी। ओके। सो दे न्यू व्हाट वाज कमिंग। ओके। एंड उनके तरफ से भी कुछ इश्यूज थे, विच मतलब आई कांट से एवरीथिंग, बट उनके तरफ से भी इश्यूज थे। सो दे वर ऑल्सो कॉग्निजेंट टू द फैक्ट कि यार नहीं चल पाएगा ये। ओके। और हम कहाँ से पैसा ला के दें? हम उनको आईपी दे सकते हैं पूरा जो हमने बनाया है। वो आईपी ले लो आप, कंपनी ब्रांड ले लो, सब आपका ही, आप ले लो सब। मतलब मैं क्या करूंगा उसका अब? एनीवेज आई एम नॉट रनिंग इट नाउ। राइट। सो या। एंड उसके बाद? उसके बाद my co-founder Snehanshu had some minor accident at a home कि we both were in Singapore for an investor meeting and उनकी वाइफ का कुछ एक्सीडेंट हो गया, माइनर सा कट लग गया, कुछ हो गया, and she wanted some documents but she couldn't find it. तो there the idea came कि यार जिनके लिए so if we'll say majority of the financial decisions or these things like insurance and everything is done by the bread earner of the family, right? राइट। जो भी bread earner, it can be male, female. राइट। तो spouse को कुछ पता ही नहीं है। मतलब for example your wife is doing much more work, earning much more than you, then she'll handle all of this, right? But husband को फिर पता ही नहीं होता है क्या सामान है, मेरा इंश्योरेंस है कि नहीं है, मेडिक्लेम है कि नहीं। घर में एक ही व्यक्ति को पता होता है यूजुअली है। Okay. सब लोग नहीं जानकारी रखते हैं इसकी। इन माय केस माय ब्रदर नोज एवरीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग, राइट? सो दैट वाज द स्पार्क फॉर हिम कि यार मेरे को मेरी लाइफ सेट करनी है, मेरे को मेरे डॉक्यूमेंट सॉर्ट करने कि भाई गलती से मुझे कुछ हो गया तो मैं जिसके लिए सब कर रहा हूँ उसको पता तो हो कि मैंने इतना कमाया है या मैंने ये इंश्योरेंस लिया, मैंने ये वो किया है। तो दैट फ्रॉम दैट मोमेंट वी स्टार्टेड सॉर्टेड. Sorted was a smart documents manager. Okay. That's what we wanted to build. Okay. Where आप बस फोटो खींचो, जो आज जीपीटी कर देता है, बट आप फोटो खींचो,
इट विल कैटेगराइज कि यार ये आपका इनवॉइस है, ये बिल है, ये इंश्योरेंस है, उस फोल्डर में डाल देगा। अगर कोई डेट होगी तो आपको रिमाइंड कर देगा। ये राइट जीपीटी आज ऐसे कर लेता है, बट हम उसके लिए टेक बना रहे थे तब। राइट। ओसीआर से आइडेंटिफाई करना कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, क्या है ये। ये 2020 में कर रहा था आप? 2019 से स्टार्ट कर दिया था Okay. हमने, एंड वी हैड अ बेसिक प्रोडक्ट रेडी बाय 2019 एंड, एंड we were pitching it to investors and everything. There we got into Axelor Ventures, एक है बैंगलोर में, very Right. nice fund, Right. great fund. Right. There we got into their accelerator program. Okay. फिर वहाँ we changed the product more towards reminders and documents, something like that, कि यार आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे जो रिमाइंडर है वो तो आ ही जाए। अगर इनवॉइस ड्यू है, इंश्योरेंस ड्यू है, कुछ पीयूसी ड्यू है, ये सब चीजें होती हैं जो चाहिए होती हैं, प्लस आपको और कुछ रिमाइंडर सेट करना है तो वो भी कर लो आप। We Okay. built that product, we built that app, just three of us. So जो हमारे CTO थे टैपमी में, he also came in as a founder. So we became 3 founders in the company. जो टैपमी में फाउंडर्स है, सेम फाउंडर्स हैं? Same. Okay. टैपमी में हम 2 founders थे and CTO थे। वो CTO also became a founder in this company. So we 3 were the founders here. And वो हमने बनाया, ऐप बना ली, सब चल गया उसमें। But the issue was कि everyone felt the app was great, but no one actually wanted to use it. Okay. सब आके बोलते हैं यार ये तो हमको चाहिए, हमारी बीवी को बताना है कि हमने कितना कमाया, क्या कमाया, पता तो रहे उसको, कल में मर गया अगर तो क्या होगा। यू वोंट बिलीव, इंडिया में 15,000 करोड़ अटका हुआ है जस्ट बिकॉज बेनिफिशियरीज नहीं है मेंशन्ड Okay. इन इंश्योरेंस। मतलब $2 to $3 billion इज स्टक बिकॉज बेनिफिशियरी को पता ही नहीं कि उसको पैसा मिलना है, जो भी मर गया है या कुछ हो गया है। सो जस्ट थिंक, इंश्योरेंस में उतना है तो और फील्ड मिला लोगे तो कितना करोड़ अटका हुआ है। Right. That was the problem we wanted to solve. But actually, it takes a lot of effort to do all of that. अब आपके कुछ डॉक्यूमेंट पेपर में है, कोई बैंक अकाउंट में है, कोई ये ऐप में है, कोई वो ऐप में है, कोई ईमेल में है, तो लोग तब फेच कर करके डालने में आलस कर देते हैं लोग। Okay. No one was putting in those documents. So we were struggling then. Yeah, this was 2020 March, I think. We were like यार अब क्या करें, ये भी बंद करना पड़ेगा, लग रहा है नहीं चल रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, पैसे खत्म हो रहे हैं, कहाँ से लाएं पैसे। और ये मार्च 2020 की 2020 की बात Okay. है, मार्च में, मार्च अप्रैल sometime, Okay. some that time. Then I talked to a very good friend of mine, यार क्या करें। बोले यार तुम लोग बेसिक क्यों नहीं करते। बोले क्या लर्निंग्स है तेरी। मतलब हमारी लर्निंग है कि यार लोग डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, फिर यहाँ पर पुट करते हैं, फिर यहाँ से ये होते हैं। बोले तूने फर्स्ट पार्ट जो बोला उस पर कुछ क्यों नहीं बनाते हो तुम लोग। Okay. तो मैं बोला स्कैन करते हैं। क्लिक किया, मेरे को फाउंडर को, हम साथ में ही बात कर रहे थे जो भी हो रहा था। बोला यार एक स्कैनर बनाए क्या अपन। फिर हमने देखा कि मार्केट में तो बहुत स्कैनर्स हैं, हम क्या नया कर लेंगे ऐसा। देन व्हाट वी रियलाइज लुकिंग एट ऑल दो स्कैनर्स इज नन ऑफ देम इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर इंडिया। एवरीथिंग इन द प्ले स्टोर टुडे, लाइक most of the apps on the Play Store today are adaptations of web versions, most of them. ईमेल लॉगिन होगा, अब इंडिया में ईमेल ही नहीं लोगों के पास यार। वी आर इंडिया ए, बट जो भारत में ऑडियंस बैठी है, जो आपका दुकान वाला है नीचे में, ईमेल तो खोला ही नहीं आज तक, वो सीधा व्हाट्सएप पे आया है। वो मोबाइल फर्स्ट है इंडियन इकोनॉमी, राइट। तो वी वर लाइक यार एक बेसिक स्कैनर बनाते हैं, वेरी बेसिक, मतलब वेयर यू डोंट हैव टू लॉग इन टू यूज द ऐप, जस्ट यूज द ऐप। वैसे बहुत कम थे प्ले स्टोर पे, तो वी वर लाइक कि हम बना सकते हैं, कुछ बेटर बना सकते हैं। Okay. वी स्टार्टेड इन मई और जून, और 10 दिन में ऐप हमने बहुत ही बेसिक ऐप बनाया। क्या मतलब एक पेज स्कैन हो सकता है उतना बना देते हैं, एक पेज आप क्लिक करो पीडीएफ बन जाएगा उसका और भेज दो आगे। तब तो कुछ पता ही नहीं था, हम बोले बस बनाते हैं। तो जो तमनजीत आर को फाउंडर, ही वाज लाइक ही इज अ बैक एंड गाय, बट ही इज लाइक यार मैं कोड कर दूंगा। ही मेड द ऐप एंड स्नेहांशु द अदर को फाउंडर डिजाइन द ऐप, एंड मुझे काम दिया गया कि तुम भाई मार्केट करो इसको। तो 15 जून उनके आसपास हमने ये सब बना के रेडी कर दिया और मार्केट करना शुरू कर दिया। एंड somehow we got from different mediums, we got 2,000 3,000 organic downloads Okay. from different Facebook group, फलाना ढीकना, बहुत जगह डाला हमने इसको। कहाँ डाला आपने? फेसबुक ग्रुप्स? फेसबुक ग्रुप्स हो गया, फिर आपका ऑब्वियसली प्ले स्टोर पे आप डालते हो तो कुछ आ जाते हैं डाउनलोड थोड़े बहुत। देन व्हाट्सएप वाज अ ग्रेट मीडियम फॉर अस, व्हाट्सएप ग्रुप्स ये वो। देन ट्विटर, जहां जहां जो यार मतलब फ्री में जो डाल सकता है डाल दो। प्रोडक्ट हंट पे डाल दिया, प्रोडक्ट हंट पे नहीं डाला था, बट और भी बीटा टेस्टिंग साइट्स होती हैं, Okay. बीटा लिस्ट, बीटा फाई, ये नाम से कुछ कुछ है।
ओके। जहां पर आप डाल सकते हो अपना प्रोडक्ट, हमने Okay. डाल दिया, बट डाउनलोड आने लग गए थोड़े बहुत। एंड 29 जून की बात है, रात को ऐसे ही बैठे हुए थे, हम तो कोशिश कर ही रहे थे कि डालते जाओ भाई, जहां जहां 500 1000 चाइनीज ऐप बैन हो गए। तभी 29 जून रात को 8-9 बजे की बात है, ये बैन हो गए। आई थिंक वन ऑफ द मेजर कॉम्पिटिटर कैम स्कैनर था। वही था मेजर, वही था मार्केट में, और कोई कुछ यूज नहीं करता था, Right. सिर्फ कैम स्कैनर यूज होता था। राइट। बेस्ट ऐप है वो। बेस्ट। वैसे क्वालिटी वाइज आप देखोगे, अब डेटा इश्यूज हैं उसमें, बट क्वालिटी ऑफ अ स्कैन डॉक्यूमेंट उससे अच्छा कोई नहीं देता था राइट। तब। तो डेटा प्रिवेसी इश्यूज के कारण बैन हो गया कि यार डेटा तो इधर उधर जाता है, प्राइवेट मतलब अच्छा सिक्योर नहीं है डेटा इसमें। तो वैसे ही कुछ 59 ऐप्स बैन हुए, वो भी बैन हो गया। ये मेरे को मेरा भाई आके बताया, और बैन हो गया। मैं अलग कुछ भी बोल रहा है तो यार, मतलब इफ टुडे समवन कम्स एंड टेल्स यू कि यार गूगल बैन हो गया, क्या सोचोगे आप? इफ समवन कम्स एंड टेल्स यू यार यूट्यूब बैन हो गया, बोलेगा मतलब क्या ही बात कर रहा है तू, यूट्यूब कैसे बैन हो मार्केट सकता है? लीडर कैसे बैन हो सकता है? मार्केट लीडर मतलब वही है, सबको कैम स्कैनर ही पता है। नो वन नोज एडोबी, नो वन नोज माइक्रोसॉफ्ट, नोबडी नोज एनीथिंग। कैम स्कैनर बैन हो गया। मतलब कुछ भी बोल रहा है, बुद्धू बना रहा है मेरे को रात को बैठ के, ये बेकार में बोल रहा है। फिर मैंने बोले तू न्यूज देख ले। न्यूज देखा, 59 चाइनीज ऐप्स बैंड। फिर देखा कैम स्कैनर बैंड। मैंने कॉल लगाया दोनों को फाउंडर को, मैं भाई ये तो कुछ हो गया है अब। बोले अब क्या करें? बोले तुम जो 5 साल में सीखे हो मार्केटिंग सब लगाओ अब। फिर मैं सोचने लगा क्या करें क्या करें। वी मेड मैसेजेस, वी मेड थिंग्स, वी स्टार्टेड रीचिंग आउट टू पीपल, मतलब प्लीज पुश इट, एंड एवरीवन कंट्रीब्यूटेड। मतलब माय फ्रेंड्स, फैमिली, इन्फ्लुएंसर्स पिक्ड इट अप, एंड एवरीवन स्टार्टेड शेयरिंग अबाउट इट। दो इट वाज अ वेरी बेसिक ऐप, मतलब उससे बेटर एप्स थे प्ले स्टोर पे, बट दैट सेंटिमेंट, दैट बैन, दैट नेम कागज, that made in India thing, app by IITians, these things worked for us, and it worked. And हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब डाउनलोड्स आते जा रहे हैं। 24 घंटे में 1 लाख डाउनलोड आ गए, 48 घंटे में 2 लाख आ गए, फिर 4 दिन में 3 लाख हो गया। वो सब ऑर्गेनिक हो रहा है, हमने एक पैसा नहीं डाला था तब, नॉट इवन टू इन्फ्लुएंसर्स। सब दोस्तों ने किया है, थोड़े 2-3 इन्फ्लुएंसर्स, 2-3 नेताओं ने पिक कर लिया उसको, फिर पीएमओ इंडिया ने कहीं से शेयर कर दिया उसके बारे में। तो ऐसा बहुत कुछ होता गया। वो 4-5 दिन में कुछ 4-5 लाख डाउनलोड आ गए, और सब ऑर्गेनिक। हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा है। हम बनाए, हम 3 ही लोग हैं उसमें से, डेवलपर, प्रॉपर ऐप डेवलपर है ही नहीं। मेरा CTO को ही है। फाउंडर है, वो बैकएंड का बंदा है। हाँ। उसको बैकएंड पूरा आता है, बट वो ऐप है तो ये तो ऐप का काम है। वो भाई लगा हुआ है कि मैं सीख के कुछ कुछ करता जाऊंगा। ही स्टार्टेड पुशिंग अपडेट्स। फिर पता चला कि सारे रेडमी फोन्स पे ऐप क्रैश कर रहा है। कुछ तो हो रहा है कि रेडमी स्पेसिफिक फोन्स पे ऐप क्रैश कर रहा है, एंड वी वर लाइक यार इंडिया में तो आधी जनता रेडमी यूज कर रही है, अब क्या करें? फिर अपडेट डाल रहे हैं हम, धमाधम अपडेट्स बस डालते जा रहे हैं। अप्रूव कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि टाइम लगता है प्ले स्टोर पे। हम एक अपडेट डाले, फिर दूसरा डाले, इवेंचुअली 2 दिन बाद एक अपडेट अप्रूव हो गया हमारा। ओके। फिर ऐप स्टार्टेड गेटिंग बेटर। दैट वाज द पिनिकल मोमेंट फॉर अस, आई वुड से, जहां से लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड, इन्वेस्टमेंट केम इन, ऐप स्टार्ट गेटिंग बेटर फ्रॉम देयर। तो देन वी रियलाइज्ड कि यार दम है इसमें, हमारी या तो मार्केटिंग में दम है या प्रोडक्ट में दम है, बट ओवरऑल ये सिस्टम में दम तो है। बनाते हैं अब इसको, फुल लग जाते हैं इसके पीछे, एंड वी स्टार्टेड गिविंग व्हाटएवर। जो लोग बोलते हैं 16 घंटे या 20 घंटे, वही काम हो रहा था। 10 दिन तो वही काम हुआ है, मतलब 10 दिन आई वुड हैव स्लेप्ट नॉट मोर देन 4 आवर्स अ डे। नहीं हो, सब फुल है यार। ईमेल फुल पड़ा हुआ है, प्ले स्टोर रिव्यूज पे रिप्लाई करना है, मार्केटिंग बढ़ाना है, पैसा जुगाड़ना है, इन्वेस्टर कॉल्स हो रहे हैं, और सब हो रहा है, और हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है। मतलब इतना हमने कभी नहीं देखा था। ओवरवेल्म हो गए थे। ओवरवेल्म हो गया, रैंडमली रोना आ जाता था कि चल क्या रहा है अब, इतना कैसे हो सकता है, डू वी डिजर्व दिस आल्सो और नॉट। बहुत चीजें हो 2 रही थी फेलियर के बाद, दोनों जीरो होने के बाद। हाँ, मतलब अब 4 साल दिए हो और वो प्रोडक्ट फेल हो गया, फिर आपने 8 महीना दिया, वो प्रोडक्ट फेल हो गया, फिर आपने 8 दिन दिए, वो प्रोडक्ट चल गया। Just because of your insight, just because of the marketing that you did, and just because of the agility with which you delivered the product. Those are the 3 things. Nothing more. मतलब हमने आइडेंटिफाई किया कि यार क्या बना सकते हैं, लेट्स ट्राई दैट। सेकेंड वाज कितना फास्ट बना सकते हैं इसको, और हमको ही बनाना था, हम कोई एजेंसी नहीं हो पाता हम लोग से। एंड थर्ड वाज मार्केट कैसे कर सकते हैं इसको। Those 3 things worked for us then, and it was all because of the learning of the past 5 years. तो ऐसा नहीं होता है कि वो एक दिन में सब समझ आ जाता है। वो कम्युनिकेशन में क्या डालना है आपको कि वायरलिटी आ जाए,
वो तो now you are doing a YouTube video for like 2 years 3 years, still you will be like you don't have that perfect formula for getting viral. नहीं तो आप आज के दिन में मिस्टर बीस्ट बन जाते ना अगर होता राइट तो. राइट But you learn with every video, you learn with every new person you meet, and फिर आपको समझ आते नहीं यार मैं थंबनेल पे ये डालूंगा तो चलेगा. You start getting better at it, राइट better. तो मैंने 5 साल बहुत वैसे हगा है honestly फेल से इन मार्केटिंग कि यार कभी हमने मतलब अपनी जनता को समझ के वैसा लाइन बनाना और उसको कहाँ पुश करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक मैं इससे लेसन ले रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस हो जाता है, ओवरनाइट सक्सेस नहीं तो हो कुछ नहीं सकता होता वो. है. अब आप ये बात समझो कि आई वांट टू रीच आउट टू इंडिया ए ऑडियंस और मैं ये सब शब्दों का इस्तेमाल कर दूं कि मैंने तो हक दिया यार, वो कभी नहीं मेरा ऐप यूज करेगा. राइट वो इंडिया ए है. राइट वो महीने का 1 लाख रुपए कमाता है, 2 लाख रुपए कमाता है, वो रिलेट ही नहीं कर पाएगा वो. बट यही मैं थोड़ा सा, मैं जहां पर मैं जिस ऑडियंस को ट्रिगर करना चाह रहा था वहां पर हम जिस ऑडियंस को ट्रिगर करना चाह रहे थे, दे लाइक द फंडा कि यार आईआईटियंस के द्वारा बनाया गया है. एंड वी आर नॉट लाइंग अबाउट इट. हम लोग हैं, दो तो हैं ही, आईआईटी से ही हैं दोनों. तो बनाया गया ऐप. देन भारतीय ऐप, अरे भारतीय बना रहे, भारतीय ही ऐप है, और कौन, हम ही फाउंडर हैं उसके, कोई और तो है नहीं. राइट सो वी जस्ट यूज द राइट वर्ड्स कम्युनिकेशन में जो चाहिए, एंड इट गॉट वायरल. The sentiment was that, the wording was that, the name of the app was that. So all of the things added up here. ओके And that's what a 5 year learning for the three of us was. कि भाई एक ने आके बोला कि यार ये वर्ड डालो, एक ने आके बोला कि यार व्हाट्सएप यूज करो, एक ने आके बोला कि यार मैं ना एक इन्फ्लुएंसर से करवा सकता हूँ ट्राई. Three of us contributed in that way to make it an overnight success. मतलब कभी छोड़ना नहीं है, करते रहो, कुछ ना कुछ हो जाएगा अगर परसिस्टेंट रहोगे तो. यार मतलब 10 साल से मैं तो यही कर रहा हूँ अभी भी. मतलब स्टिल आई वुड नॉट से आई एम अ सक्सेस इन एनी वे. फॉर सम इट मे लुक दैट आई एम सक्सेसफुल, बट फॉर माई सेल्फ आई एम डेफिनेटली नॉट. क्योंकि मेरा डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज समथिंग डिफरेंट. उनका डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज मे बी नंबर ऑफ डाउनलोड्स. क्या तेरे तो ऐप के इतने डाउनलोड्स हैं, मतलब उससे क्या फर्क पड़ रहा है. मेरे ऐप के 100 करोड़ डाउनलोड भी हो जाएं और मैं वो नहीं कर पाऊं जो मुझे करना है मेरी फैमिली के लिए, तो इट्स नथिंग, इट्स नॉट सक्सेस, इट्स जस्ट ठीक है, ब्लिप. यार हो गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया. आई थिंक एक आप ये बोलोगे कि एक लक भी था आपके साथ, क्योंकि कैम स्कैनर. मतलब मैं कैसे डिनाई कर दूं कि लक नहीं है, बस मैं ही हूं, ऐसा नहीं हो सकता ना. मतलब एवरीथिंग हैज टू प्ले अ रोल. अब लक 10% था कि 50% था, वो तो लोगों के ऊपर है, लोग क्या बोलेंगे. ओके बट सब था ना. मतलब वो बैन नहीं होता अगर, तो हो सकता है मैं आज इतने स्पीड से नहीं बढ़ रहा होता, कुछ और कर रहा होता. यू नेवर नो. इट्स बट एक एक मेरे दोस्त ने अभी पोस्ट से इसी बात पे पोस्ट लिखा था लिंक्डइन पे. लक है नहीं है, बट आई वॉज देयर एट दैट मोमेंट, तभी लक साथ दिया मेरा. अगर मैं छोड़ चुका होता कि यार नहीं स्कैनर नहीं बनाएंगे हम, और ये बैन हो जाता, तो क्या फर्क पड़ता मेरे को, कुछ नहीं होता. बट आई वॉज देयर, वी थ्री वर देयर, स्टैंडिंग देयर एट दैट मोमेंट जब बैन हुआ. There's the luck. राइट But we were there. If we weren't there, तो लक भी नहीं होता, कुछ नहीं राइट होता. So हाँ, उसने ये पोस्ट लिखा था कि यार you were there when that happened, तो लक काम आया तुमको, नहीं तो नहीं आता वो काम. राइट So yeah, वही it's a very, काफी ज्यादा बोल दिया मैंने, बट हाँ. तो अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं, आपकी मार्केटिंग टेक्निक्स क्या क्या हैं? अगर मैं 5 स्ट्रैटेजीज बताऊं जो आप अप्लाई करते हो मार्केटिंग में, जो आपने सीखा है ओवर द इयर्स, तो आप बताओगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज है? यार I'll be honest, now I think in a very कागज centric way. I don't think in a broad way. मतलब I can't tell you how Zomato thinks or anyone thinks. राइट I am not a marketing guru like that कि मैं किसी के लिए कुछ भी बना दूं. कागज में what has worked for us is simple marketing, easy to understand marketing. वो सामने से बताओ क्या आपको स्कैनर चाहिए, बस. ज्यादा यहाँ पर हमारे यूजर्स को खतरनाक नोटिफिकेशन समझ नहीं आते हैं, जो मुझे समझ आया अभी तक. सेकेंड, आइडेंटिफाई दैट वन चैनल, वट एवर वर्क्स फॉर यू. आइडेंटिफाई दैट वन चैनल जहां यू कैन बी द किंग, कि यार मैं ये चैनल फोड़ सकता हूं मैं. और एज अ फाउंडर आपको खुद फोड़ना चाहिए एक चैनल को, तो उसके बाद आप लाओ लोगों को जो आपके लिए फोड़े चैनल. तो identify that one channel that works for you and keep doubling down on that. Don't be like नहीं मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा. मैं मत करो. You will get
पहली बात तो पैसा नहीं होता आपके पास इतना, जब आप बना रहे होते हो आपके पास एक लिमिटेड पैसा है, अब उस पैसा में रिजल्ट मैक्सिमाइज करना है, तो एक्सपेरिमेंट करो कि यार, और यू हैव टू एक्सपेरिमेंट विद गुड अमाउंट, यू कांट एक्सपेरिमेंट कि मैंने 500 रुपए का ऐड चला दिया, कोई प्लेटफॉर्म नहीं काम करता है, आपको पैसा लगाना पड़ेगा थोड़ा, 10,000 15,000 20,000 महीने का आपको देना पड़ेगा कैंपेन को, तब जाके वो कैंपेन फिगर आउट करता है, जो भी है, आई टेल मोर ऑन दैट, बट आइडेंटिफाई दैट वन चैनल। थर्ड, गिव इट टाइम, मतलब गिविंग इट टाइम इज सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम मार्केट जो चैनल्स के थ्रू कर रहे हैं, दोज आर ऑल वेरी डेटा ड्रिवन चैनल्स, मतलब गूगल, मेटा, ये सब बहुत ही डेटा पे चलते हैं कि यार ये करके, मतलब आप एक्स रुपीज आप डालोगे तो कैंपेन काम करेगा, सर्कल है, फिर वो सीखेगा, फिर आप रुपया डालोगे, फिर वो सीखेगा, फिर वो रुपया डालोगे, सीखेगा, बेटर होते जाएगा विद टाइम। तो यू नीड टू स्पेंड एक्स अमाउंट ऑफ मनी एंड गिव वाई अमाउंट ऑफ टाइम। यू कांट डू इट कि मैंने तो यार 1 लाख डाल दिया 3 दिन में खत्म करने, अरे ऐसे नहीं होता है। 1 लाख आप डालो स्प्रेड आउट करके 30 दिन में, ओके, अगर डाल रहे हो तो, या जितना भी बजट है, 15,000 बजट है आपका, ऐसा नहीं कि 2 दिन में सब बजट खत्म, 30 दिन के लिए कैंपेन चलाओ, चलने दो उसको। जो भी अमाउंट आपको डालना है, अगर आपका बजट 15,000 ही है तो 500 के हिसाब से 30 दिन का चलाओ, बट एटलीस्ट 15,000 स्पेंड करो, 20,000, डिपेंडिंग ऑन द चैनल, ऐप कैंपेन जो भी होते हैं, वो एक तरीका होता है। और तो वो एक चीज और हमने सीखी, मतलब इसमें बताना चाहूंगा कि चैनल आइडेंटिफाई आप ठीक से करें एंड समय दें उसको। समय नहीं दोगे ना तो ये कोई कैंपेन नहीं चलते हैं, अगर ऑनलाइन है तो। ऑफलाइन तो आप बहुत, ऑफलाइन में भी समय देना पड़ता है, मतलब सपोजिटली आप पुटिंग अप अ कियोस्क टू सेल योर सर्विस, हो सकता है एक एरिया में काम ना करे, हो सकता है दूसरे एरिया में कर जाए, तो आपको 3 एरिया में लगाना पड़ेगा 3 दिन जाके। ऐसा नहीं है एक एरिया में लगाया नहीं चला तो दुकान बंद कर दी अपनी, वो नहीं होता है। यू नीड टू गिव इट टाइम, यू नीड टू गिव इट एनर्जी, रोज लगाना पड़ेगा, रोज एफर्ट डालना पड़ेगा, रोज देखना पड़ेगा कैंपेन्स आपको। ये है, तो आई गेस दोज आर 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर अस, विच प्लस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में ही दम नहीं है तो कुछ भी मार्केट कर लो, नहीं चलने वाला है वो। प्रोडक्ट शुड डू व्हाट इट इज सेलिंग फॉर, मतलब अब आज के दिन में हम स्कैनर के नाम से बेच रहे हैं, तो स्कैन तगड़ा होना चाहिए। शुरू के 6 महीना हमारा स्कैन तगड़ा नहीं था, तो हमने 6 महीना बस यही एफर्ट डाला है कि स्कैन तगड़ा हो करें। तो स्कैन तगड़ा करने का मतलब मेरा ये है कि इंडिया में हजारों SKUs है फोन के, मोबाइल फोन के। ओके, एंड्रॉइड 6 से लेके एंड्रॉइड 13 14, पता नहीं 14 आ गया शायद, अब ये 15 भी आ जाएगा, आई डोंट नो। उतने प्लस ब्रांड्स प्लस मॉडल्स। ओके, तो जस्ट इफ यू थिंक देयर विल बी 10-12 डिफरेंट ब्रांड्स। कई ब्रांड तो मैंने जब रिपोर्ट निकाली, मतलब ये कौन सा फोन है, अब हमको सब ब्रांड का एक एक फोन रखना पड़ता है, क्योंकि स्कैनिंग इज वेरी डिवाइस डिपेंडेंट। ओके, कैमरा है उसमें, उसमें प्रोसेसिंग चाहिए, जो भी चाहिए, बहुत डिवाइस डिपेंडेंट चीज है ये। बट सेम नहीं होता कैमरा तो? नहीं, ओके, सब फोन्स में अलग कैमरा है। अब 7,000 का फोन और 70,000 का फोन, कैमरा सेम कैसे हो सकता है? प्रोसेसिंग अलग होगी, फोन का विड्थ अलग होता है, फ्रेम अलग होता है। यू वोंट बिलीव, सर्टेन कैमराज में आप क्लिक करो फोटो, आपके फ्रेम में कुछ और दिखाता है, आउटपुट कुछ और देता है वो। ओके, हाँ, we use expensive phones. That's why we don't get to know these things. But when you start seeing so many phones, you'll be like, यार ये भी हो गया, फोटो खींचने में इतना टाइम लग जाता है उसको, ये करने में इतना टाइम लग जाता है उसको। So that's why we took 6 months to refactor the entire code, just so that हमारा ऐप एक base level should be same across all the phones. Quality should be same across all the phones. वो करने में हमको बहुत टाइम लग गया। लोग हमको बोलते हैं कि यार स्कैनर कोई भी बना सकते हैं, मतलब बना लो इंडिया मार्केट के लिए। आपको इंडिया मार्केट के लिए स्कैनर बनाना है तो आपको इतने सारे डिवाइसेस को सोच के चलना पड़ेगा। यहाँ सबसे ज्यादा डिवाइसेस 15,000 से सस्ते वाले हैं, सब 15,000 रेंज के, सब 20,000 रेंज के फोन है। जो फोन पे आप डेवलप करते हो 50,000 रुपए का फोन है। गॉट इट। सो पॉइंट वो है कि इंडिया मार्केट इज वेरी डिफरेंट, इट्स ए यूनिक मार्केट। मतलब लोग भी अलग हैं, ब्रांड्स 50 हैं, ऐसे ऐसे ब्रांड है, यू विल बी लाइक यार ये कौन सा ब्रांड है, ये तो मैंने कभी नहीं सुना लाइफ में, बट है उसके फोन्स भी। वो कहाँ है? टियर 4 मार्केट में चल रहा है वो फोन, पता नहीं कहाँ से आया है, अफ्रीका से इंपोर्ट हुआ है या कहाँ से हुआ है, आई हैव नो क्लू। बट वो ब्रांड है, कभी एड भी नहीं देखा होगा उनका आपने, बट है वो ब्रांड्स। ओके, सो या, तो आप ये बताओ कि जैसे कैम स्कैनर तो बैन हो गया था, एंड और भी कॉम्पिटिटर्स होंगे ना उस टाइम पे? बहुत है, हाँ, बहुत थे। बहुत है। तो आपका अब भी मोड है। क्या है?
मोट हम बस बोलते हैं, मतलब यू कैन सी ऑन आवर प्ले स्टोर आल्सो, इट्स सिंपल टू यूज. ओके दैट्स वी हैव मेंटेन्ड फ्रॉम डे वन. हमारा होम स्क्रीन हम क्लटर नहीं करते हैं ज्यादा, आज भी नहीं करते हैं. होम स्क्रीन में कुछ भी चेंज आना है तो मेरा को फाउंडर 1 साल ले लेगा चेंज करने में उसको, क्योंकि हमारा मोट वही है. हमारा मोट इज इजी टू यूज फॉर द जनता. मतलब वेरी स्मॉल थिंग आई विल टेल यू कि हमारा मेन बटन का नाम है स्कैन पीडीएफ. ओके इट्स ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, बट हर जनता लाइक्स दैट वर्ड. उनको इजी लगता है समझने में, वो क्लिक ज्यादा होता है उससे. फिर we don't have a login to use the app. और if you want to use the app, you don't have to compulsory login. Cross कर दो, आप चल जाएगा ऐप आपका. So अब हम मोनेटाइज करने के लिए we are doing a lot of things, but बिना साइन इन किए आप ऐप चला सकते हो, स्कैन कर सकते हो. और कुछ फीचर करना है तो साइन इन करना पड़ेगा आपको. थर्ड इज देर आर ऑल फॉर्म्स ऑफ साइन इन, नॉट जस्ट ईमेल या नॉट जस्ट नंबर. इंडियन ऑडियंस वांट्स एवरीथिंग, राइट सब चाहिए उसको. राइट तो वो एक है. Then these are the major things I'll say. मतलब जो फिर इवेंचुअली तो यार प्रोडक्ट के साथ मोटा बनाते जाते हो. अब जैसे हम जितने टूल्स देते हैं एक ऐप के अंदर, आई डोंट थिंक सो 1-2 ऐप और देते होंगे, उससे ज्यादा नहीं दे पाते सब टूल्स. ओके मतलब हमारे ऐप के अंदर अभी 20 टूल्स हैं, ओके बाकी ऐप्स के अंदर नहीं है टूल्स इतने. सो वो भी है एक पॉइंट. तो आपने अभी जैसे बात किया था कि मोनेटाइज करने के लिए हम कुछ कुछ चीजें करते हैं, तो Right. आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हो बताओगे? सब्सक्रिप्शन है एंड एड्स है, यही Okay. दो सोर्स है मेजर रेवेन्यू का हमारा. सब्सक्रिप्शन इज बेसिकली टू यूज द फीचर्स इन एन अनलिमिटेड. इट्स अ फ्रीमियम ऐप कि आपको दिन में 1 टूल का एक्सेस मिलेगा, 2 टूल का एक्सेस मिलेगा, बट आपको अनलिमिटेड चाहिए तो पे करो आप हमको. एडवर्टीजमेंट्स हैं, यही 2 मोड है हमारे मोड ऑफ रेवेन्यू जनरेशन. 1-2 और है कि भाई सम कंपनीज आर यूजिंग आवर स्कैनिंग टेक, तो वो हमको मंथली कुछ पैसा दे देती हैं, तो वो 1-2 कंपनीज वो यूज कर रही हैं. बट मेजॉरिटी इज सब्सक्रिप्शन. ओके 90% और 80% आई कैन से सब्सक्रिप्शन फॉर अस. ओके तो लोग Yeah. सब्सक्राइब करते हैं ऐसे यूज करने के लिए? यस दे आर डूइंग. क्योंकि एक बैरियर नहीं लगता है कि मैं 2 अगर इससे स्कैन कर रहा हूँ, मैं कोई दूसरे ऐप में चला जाऊंगा, उससे 2 स्कैन करूंगा? कर लो, बट वही है ना, ईज चाहिए लोगों को. अब कन्वीनियंस चाहिए, एक ही जगह सब चाहिए. आप 3 ऐप में मेंटेन करोगे. फॉर एग्जाम्पल कल के दिन में, तब मेरे को आज इशू होने लग गया है कि आई यूज 5 यूपीआई एप्स. ओके ठीक है, कौन कैशबैक दे रहा है ज्यादा, बट इवेंचुअली जब कुछ रिकॉन करना होता है मेरे को, तो मेरी हालत खराब हो जाती है. यार कहाँ से पे किया था ये, मैंने ढूंढना पड़ता है जाके मेरे को 5 ऐप में वो. सो नाउ आई एम स्टिकिंग टू 1 ऐप ओनली फॉर माई मेजॉरिटी ऑफ माई ट्रांजेक्शन. 2 ऐप मेजरली, उनके अलावा मैं कहीं जाता ही नहीं अब बाहर, क्योंकि इतना डिफिकल्ट हो जाता है फिर खोजना कि यार पे कहाँ से किया था इसको मैंने. सेम इज विद डॉक्यूमेंट्स. आपने यहाँ कुछ कर लिया, फिर 3 ऐप में कर लिया. ट्रांजैक्शन है तो इट्स ओके, यू कैन मैनेज इट, बट आप अगर आप रोज यूज कर रहे हो वही पैसा देता है आदमी, राइट जो हर कुछ फ्रीक्वेंसी में यूज कर रहा है. इफ यू यूज इन अ ट्रांजैक्शन बेसिस तो यू विल नेवर पे मी, but if you use it maybe weekly once, you can pay me. You are a good user for me, who will pay me maybe. So Got yeah, it. yeah. I think Plus keeping it affordable. मतलब our most cheapest plan is some 999 rupees for 3 years. ओके 3 साल का 1000 रुपए दे दो आप हमको. ओके और वी हैव अ पॉकेट साइज ऑल्सो कि भैया आप मेरे को महीने का 100 रुपए दे दो आप मेरे को, whatever, मतलब whatever suits you. अब इफ यू कैन स्पेंड इन वन गो तो आप मेरे को 3 साल का दे दो, आप 1000 रुपए में ले लो मेरे से. एंड तो- मैं कितने भी डॉक्यूमेंट्स रख सकता हूँ उसमें? देयर इज अ सेट नंबर ऑफ क्लाउड. अगर आपको क्लाउड चाहिए तो आपको पैसा देना पड़ता है. ओके तो वी प्रोवाइड 1 GB क्लाउड सर्विस, Okay. क्लाउड स्पेस विद एनी प्रीमियम परचेज. बट वैसे तो आप कितना भी स्कैन कर लो. अगर आप फोन में रख रहे हो अपने तो स्कैन थाउजेंड्स, वी डोंट केयर, इट्स ऑन योर Okay. फोन. सो या, अगर कोई डीपर पर्पस भी है क्या कागज का, बियॉन्ड डॉक्यूमेंट स्कैनर? so what we feel कि Indian audience needs, like deserves better in a way कि see पूरी इंडिया जनता हुआ क्या है ना कि maybe you who graduated from a good college, me who graduated from good college, we have had access to a laptop or a desktop. Majority of Indian जनता has moved from offline to online straight to mobile. They never got to desktop. They've never seen desktop. उनके लिए यही सब है, मोबाइल जो हाथ में है वही सब है. तो we think कि Indian जनता deserves a better suite of tools which are made for mobile and not just adapted for mobile. These are 2 different things.
मतलब आप जितने भी प्रोडक्टिविटी के एप्स देखोगे मेजरली, नॉट द इफ यू पिक अप स्मॉल वंस तो अच्छे होंगे वो, बट अ स्वीट जो भी आप देखोगे दैट इज अडेप्टेड फॉर मोबाइल। सबका डेस्कटॉप मेन है वो, बट मोबाइल में कर दिया उन्होंने कुछ कुछ कुछ। वी वांट टू मेक दैट कि भाई अ suite of apps where Indian users can be more productive, but they are made for mobile। पूरा उनका फील ही मोबाइल से आ रहा है जहां पर। सो या दैट्स द मेन कोर इंटेंट, टू मेक अ suite of apps। We have already made 2 apps now, we'll be making more hopefully in the future if people accept it। So ओके, yeah। गॉट इट। एंड अगर मैं लेगेसी की बात करूं तो आप लेगेसी क्या देखते हो? अगर मैं 50 साल बाद ये कंपनी को देखूं तो आप क्या चाहते हो कि कंपनी कैसा दिखे? कंपनी दिखे, द so what 3 names come to your mind when I ask you a good company or a big company? क्या नाम आता है दिमाग में? गूगल, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स। YouTube is not a company, गूगल का ही है वो राइट। इवेंचुअली, राइट? गूगल आया सबसे पहले, वही बनना है। इंडिया भी गूगल बना सकता है, दैट्स द, सो बेसिकली वो करना है कि यार इंडिया से गूगल बनाना, मतलब इंडिया से माइक्रोसॉफ्ट बनाना, वैसा कुछ बनाना कि जो जनता यूज करे, मतलब करोड़ों जनता यूज करे जिसको, वो बनाना है हमको यहाँ पर। नॉट जस्ट कि ठीक है एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाया बेच दिया थोड़ा पैसा बना लिया, तो यार कभी भी कर लेंगे वो तो। अगर 2-5 करोड़ बना के रुक जाना है अपने को लाइफ में, तो वो तो कुछ भी एक प्रोडक्ट बना लो जिसको आप बड़ी कंपनी को बेच दो, बहुत बढ़िया। एम तो वही है यार। अब हाउ times take turn for us or how situation is, we don't know what might happen in the future, but aim तो वही है कि इंडिया से गूगल क्यों नहीं बन सकता, और वैसा क्यों नहीं बन सकता जो एक स्वीट ऑफ प्रोडक्ट्स है जिसको लाखों लोग, करोड़ों करोड़ों लोग यूज कर रहे हो, बेसिकली लाखों तो नहीं करोड़ों चाहिए, तब मजा आएगा कुछ। सो दैट्स द लेगेसी दैट यू आर आस्किंग वी वांट टू बिल्ड, कि इंडियंस भी ऐसा बना सकते हैं। वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट कि इंडियंस कैसे कर सकते हैं ये सब, वो तो आउटसोर्सिंग कंट्री है, क्यों, वी कैन बी द क्रिएटिंग कंट्री। बेस इंडिया है ही हमारे पास, और इंडिया पैसा देता है, थोड़ा इशू है बट देता है इंडिया पैसा, ऐसा नहीं है कि इंडिया पैसा नहीं दे सकता है इंडिया पैसा। सो ओके। या अगर मैं बात करूं कि आपके पास 2 फेलियर हुए थे, राइट? उसके बाद आपने इनोवेट करा, तो क्या फेलियर होना ज़रूरी है लाइफ में? नहीं यार, इनोवेट तो तब भी कर रहे थे, बट वो इनोवेशन काम नहीं कर रहा था, वो इनोवेशन डिडंट वर्क फॉर अस। सो ऐसा नहीं है कि तब इनोवेशन नहीं था, इनोवेशन तो तब भी था, बट एक सेल्फ डाउट आ जाता ना, 2 नहीं चले उसके बाद। सेल्फ डाउट तो यार पहला जब बना रहे हो तब भी रहता है। इट्स जस्ट द, आप में कितना रेजिलियंस है, आप में कितना विल पावर है टू ड्राइव थिंग्स। अब फॉर एग्जाम्पल ये भी नहीं चला तो सोचेंगे फिर क्या करना है, फिर भी टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे मार्केट में, वी डोंट नो कि कुछ और बना पाएंगे या थक गए हैं। आई डोंट नो दैट, बट there are small wins I guess which play a role to drive your resilience up। ओके। मतलब अब टैपमी के टाइम पे हमारे लिए सिटी लॉन्चेस हुए, दो स्मॉल विंस कि यार हमने नया सिटी लॉन्च कर दिया। द स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ आवर टेक्नीशियंस वर द स्मॉल विंस फॉर अस, कि सर आपके कारण मेरी शादी हो गई, नहीं तो मेरे को तो कोई भाव भी नहीं देता था यहाँ पर, मैं तो बस एक एसी सर्विस वाला हूँ, मैं 3 महीने का। तो यू वोंट बिलीव, वन ऑफ द गाइज देयर वाज a clerk in a diaper company or something, I don't know, वो 3,000 महीने का कमाता था, 3,000 महीने का, 100 रुपए पर डे, for just writing few things। When he worked with us, he started earning 15,000 per month, just with a little bit of training, just with a little bit of training। So तो आप क्या ट्रेन करते हो उनको? जब टेक्नीशियन थे हमारे वो, तो अब एसी सर्विसमैन है, Right. हेल्पर की तरह गया वो मेन टेक्नीशियन के साथ, सीख गया एसी सर्विस करना, कर दिया एसी सर्विस करना 500 रुपए पर एसी सर्विस। वो महीने का 30 एसी सर्विस कर देता था, 15,000 रेवेन्यू, उसका कट हमारा कंपनी कट हटा दो तो भी 12,000 मिलते थे उसको। दैट इज द अर्निंग। वो बोला सर मैं 3,000 कमाने वाले आदमी को आपने 12,000 कमाने वाला बना दिया 2 महीने के अंदर अंदर, मैं तो स्प्लेंडर खरीद लिया उसले जाके, शादी भी कर रहा हूँ मैं अगले महीने। That is the level of impact that increase the resilience for us। In कागज it is multiple things, क्या रेवेन्यू माइलस्टोन्स, क्या ये रेवेन्यू आ गया, ये डाउनलोड्स हो गए, ये हमने रिव्यू आ गया कस्टमर का, इसने सोशल पे हमको प्रमोट कर दिया फ्री में। दोज आर स्मॉल विंस फॉर अस, कि यार ये रील वायरल हो गई, तो बहुत छोटी छोटी विंस है दोज।
those should be the push for your resilience. मतलब वो छोटे wins जो है ना, आप उनको भूल मत जाओ, ओके करते रहो सेलिब्रेट. अब जैसे मैं काफी अब इतने साल से काम कर रहा हूँ स्टार्टअप में कि कई बार मैं भूल जाता हूँ कि मुझे सेलिब्रेट करना है, तो मेरा को फाउंडर कोई बोलता है. तो अब यही हुआ कि यार वी अचीव्ड अ सर्टेन माइलस्टोन इन आवर रेवेन्यू. तो परसों एक एम्प्लॉय ने बोला, टीम मेंबर ने बोला कि गौरव यार पार्टी कहाँ है इसकी. मैं बोला कल चलो. तो कल हमने वहीं चले गए, गो कार्टिंग करके आ गए हम लोग कल. तो मेरा को फाउंडर वाज लाइक हाँ हाँ गौरव करना तो चाहिए. मैं बोला अरे छोड़ो ना, नेक्स्ट टारगेट पे करेंगे. बोले नहीं नहीं नहीं, इस टारगेट पे करना है अपने को. दो इट्स नॉट अ बिग अमाउंट दैट वी आर स्पेंडिंग, बट इट्स जस्ट दैट फीलिंग फॉर एवरीवन कि यार पार्टी कर लिए, हम कुछ कर लिए, मजा आता है सब. तो या दोज आर द स्मॉल विंस दैट यू शुड सेलिब्रेट टू पुश योर लिमिट्स, मतलब पुश योर रेजिलियंस मोर, गिव मोर पुश टुवर्ड्स योर थिंग्स जो भी आप कर रहे हो वैसा. या तो आप काफी ज्यादा इनोवेट करते हो क्या, क्योंकि काफी ज्यादा इनोवेट करना पड़ता है टीम के साथ, एआई ऑटोमेशन सब आ गया है, तो इनोवेशन आप करते हो? इनोवेट आई वुड से कि मैं वापस we are open towards a lot of new things that are happening. अब फॉर एग्जाम्पल हमारा डिजाइनर है, ठीक है, ही कम्स टू मी एंड सेज कि बॉस इसका ना अपने को सब्सक्रिप्शन लेना है, $10 का है ये, बट मैं ऐसे 4 टूल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता हूँ. $40 इज 3500 rupees. राइट. That's an amount, हम्म. right? But we are like, okay, take, learn from it. जो लर्न कर सकते हो, तो दैट्स वेयर वी इनोवेट, और दैट्स वेयर अब जैसे मेरा काम नहीं है वो, व्हाट यू आर आस्किंग. मेरा को फाउंडर है जैसे स्नेहांशु, ही इज ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर दीज न्यू टेक. वो ढूंढता ही रहता है कुछ ना कुछ, और वो खुद ही बनाता रहता है उसको अपने आप. ही मेक्स समथिंग, देन ही व्हेन ही इज रेडी विथ इट, he'll give it to the tech team कि यार मैंने ये बनाया, कैसा लग रहा है इसको देखो एक बार. फिर टेक टीम उसको मास के लिए इनोवेट करती है, वो तो अपने लिए बनाता है. ओके. वो मास के एंगल से टेक टीम सोचती है उसको कि यार इसको मैं एक प्रोडक्ट की तरह कैसे लाऊंगा. तो ये तो आइडिया और एक बेसिक सा लेके जाते हैं कुछ. देन तमनजीत माय को फाउंडर, देन ही लुक्स एट इट एंड सेज कि यार इसको हम ऐसे कर सकते हैं. या अब फॉर एग्जांपल हमें अभी ये हुआ कि कुछ फोटोज से वीडियो बनाना है ऑटोमेटिकली फॉर अ बिग नंबर, वो कैसे बना सकते हैं, तो उस पर काम चल रहा है अभी. तो यस वी कीप इनोवेटिंग. ऑब्वियसली इनोवेट नहीं करेंगे तो बंदी हो जाएंगे हम कभी. तो कब तक एक ही सामान को बेचते रहेंगे. तो अब जैसे कागज है, कागज में टिल 1 year back और 1.5 years back वी वर प्लेइंग कैच अप ओके. कि यार मार्केट में ये टूल में ये फीचर है, हमको भी बनाना पड़ेगा. तो 1 साल पहले हमारा वो कैचअप बंद हो गया. अब हम नया चीजें ही कर रहे हैं. अब जैसे वी हैव इंट्रोड्यूस्ड कागज एआई, जो बेसिकली जो जीपीटी वाला काम है, वील डू दैट ऑन योर डॉक्यूमेंट्स वेयर इट इज एंड मेक इट सिंपलर फॉर यू. तो a good wrapper around the GPT part where it's simplified only for documents. वो हमने इंटीग्रेट कर लिया कागज में अब. ओके. That took us good 3-4 months time, जहाँ we could optimize it for documents only. और वैसा बनाया है, उसमें और भी चीजें लगाई हैं कुछ कुछ, नॉट जस्ट कि बस जीपीटी डाल दिया, और भी इनोवेशन किया है उसमें कि यार ये डॉक्यूमेंट्स पे अच्छे से काम करे. वी हैव डन दैट इन द पास्ट 3 months or so. ओके. या तो अगर यूजर फीडबैक की बात करूं, तो आप ये यूजर फीडबैक कैसे बैलेंस करते हो? आपका कोई विजन होगा, राइट? तो जैसे आपकी कंपनी का कोई विजन है, तो उससे आप कैसे बैलेंस करते हो कि यूजर फीडबैक भी आप दोनों बैलेंस कर रहे हो? विजन तो इवेंचुअली है जो अपन पहले बात की, एक स्वीट ऑफ ग्रेट प्रोडक्ट्स बनाना, राइट. अब इसमें फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यूजर्स नहीं है तो कुछ नहीं है हमारे लिए फिर. सो इसलिए फीडबैक पूरा कंट्रोल फाउंडर्स के हाथ में है अभी भी. मतलब प्ले स्टोर रिव्यूज जो भी 4 स्टार एंड बिलो होते हैं, वो मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ सारे. ओके. इट्स नॉट विद एनी इंटर्न. तो 5 स्टार वाले लोग देखते हैं, बट 4 स्टार एंड बिलो वो मैं ही देखता हूँ. मतलब मेरा काम है देखना वो कि क्या हो रहा है, देखो उसको. व्हाट्सएप सपोर्ट आज मेरे को फाउंडर के पास है. सो दैट इज हाउ वी एंश्योर कि एवरी फीडबैक गेट्स टू अस एंड नॉट लॉस्ट इन बिटवीन. सो देयर वी कैन देन क्वालिफाई कि हाँ यार इस पे करना है, इस पे नहीं करना है काम अभी. क्योंकि अब कोई हमको कुछ बोलता है कि यार ये बना दो, बट वो हमारे विजन से अलाइन नहीं करता है, तो हम मना कर देते हैं कि हम नहीं बना पाएंगे. किसी ने हमको बोला कि यार तुम ना ये बना दो अभी, मैं यार अभी नहीं अलाइन करता है, मे बी 1 साल बाद में बना दूं, बट आज तो नहीं बनाऊंगा इसको मैं. दैट्स हाउ वी सी यूजर फीडबैक एंड देन टेक एक्शन ऑन इट. मतलब every feedback is given an answer, I can say yes, no or maybe. ये 3
बट आंसर जाता है कि अब आज जैसे सुबह ही मेरे को एक लिंक्डइन पे मैसेज आया कि यार आपके ऐप में ये फीचर नहीं चल रहा है। वो मेरे को आया, लिंक्डइन ओके पे आ गया वो, अब मैंने को फाउंडर को दिया, को फाउंडर ने बोला उसका नंबर लो, मैं बात करता हूँ क्यों नहीं चल रहा है। दैट्स हाउ वी डू इट। ओके। या मैं अगर बात कर रहा था एक फाउंडर से, आकाश, जिप इलेक्ट्रिक के फाउंडर है, ओके। तो उन्होंने बोला कि कोई भी बड़ा आइडिया होता है उसको कॉपी करो एंड वो चलेगा ही। तो आपके भी काफ़ी सारे कॉपी कैट्स आते होंगे, तो आप उनके साथ कैसे डील करते हो? यार स्कैनर में तो वैसे भी 100 ऐप मार्केट में है ऑलरेडी, बट वी हैव आवर ओन ब्रांड पर्सोना, ब्रांड नेम एंड यूजेबिलिटी आई वुड ओके। से। मतलब इवन इफ यू गो टू आवर प्ले स्टोर एंड सी कि यार मतलब मैक्सिमम रिव्यूज यू विल फाइंड सिंपल टू यूज। वो प्ले स्टोर का वो भी वही बताता है, जो एक वहां पे रिव्यू एनालाइजर होता है प्ले स्टोर पे, आप जाके देखो तो सबसे ज्यादा इजी टू यूज, सिंपल टू यूज आता है हमारे लिए वो। सो टू कीप मेंटेनिंग दैट and to keep innovating on top of that, that's what differentiates us from copycats. Copycat तो एक बार बना के छोड़ देगा उसको, हम तो उसमें घुसे हुए हैं दिन रात। अब हम तो यूजर फीडबैक भी लेके बैठे हैं। अब यूजर फीडबैक में अब समझ लो हमने एक ऐप का आज एक रूप है, आज एक यूआई है, बट वो यूजर फीडबैक आया कि इसको बदल दो यार, ये स्कैन बटन यहाँ से यहाँ करो, मैं तो रोज सुन रहा हूँ बैठ के। वो कॉपीकैट तो नए कॉपी करने निकल गया कहीं वो बना के, राइट? We are there, we are listening to the users, and that's what I guess differentiates us कि हम सुनते रहते हैं बात, यूजर क्या कर रहा है हमारे बारे, हम दिन भर उसी में हैं, हमारे लिए कोई और आइडिया है ही नहीं। तो आप कितना कॉपी कर लोगे आप मेरे को, कब कहाँ तक कॉपी कर लोगे? या तो फिर आप मेरे कॉम्पिटिटर बन जाओगे सीधा सीधा, तब मैं आपको डिफरेंट तरीके से एड्रेस करूंगा, मे बी मार्केटिंग से करूंगा, मे बी ब्रांडिंग से करूंगा, कुछ और करूंगा। बट फ्रॉम अ फीचर स्टैंड पॉइंट हम तो दिन रात जी रहे हैं उस प्रोडक्ट को, सो इट्स डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू जस्ट कीप कॉपीइंग दैट। कैसे कर लेगा ना वो, हमेशा मेरे से डिलेड ही रहेगा, क्योंकि ये फीचर बनाने में 3 महीना लगता है। हम थोड़े न 5 दिन वाले फीचर नहीं होते हम लोग के, ज्यादा लंबे वाले फीचर होते हैं, तो वो बनाने में टाइम लगता है। मैं अब बना के रिलीज कर दिया, उसको 3 महीना लगेगा बनाने में। वो उसके पास वो स्केल नहीं है, उसके पास वो एजिलिटी नहीं है कंपेयर टू अस। सो या आई वुड से वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ कॉपी कैट्स टूडे। मे बी और बड़े हो जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा होगा। वी आर नॉट दैट बिग राइट नाउ कि कॉपी कैट आएगा वो ये बना लेगा तो कुछ हो जाएगा, नहीं होगा कुछ भी। आप अभी सिर्फ इंडियन मार्केट को टारगेट कर रहे हो? यस, मेजरली। मतलब वी कीप ट्राइंग इधर उधर, बट वी लाइक एंड वी अंडरस्टैंड इंडियन मार्केट बेटर। वी हैव ट्राइड कि हम यहाँ भी कर लें वहां भी कर लें, बट हमें नहीं समझ आया, नॉट आवर फोर्टे, तो वी स्टॉप्ड। सेंटिमेंट्स क्या अलग होते हैं इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट के? I think so. Indian market needs a simple product. Okay. That's what I've been saying. Global market needs a suave, posh product. थोड़ा सा मतलब both are doing the same thing, but they need better on the design front, UI front, and everything. They need more concentration on that. इंडिया में चाहिए भैया आउटपुट आ जाए बढ़िया से, बस इजीली। ओके। मतलब जो महीने का 25-30 साल का 25-30 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, उनको जो प्रोडक्ट जमता है वो सॉर्ट ऑफ अ ग्लोबल मार्केट प्रोडक्ट हो जाता है। बट वी आर थोड़ा सा मोर इंडियनाइज्ड। हम काफी बेसिक चीजों पे ध्यान रखते हैं। हमारा ध्यान है आउटपुट पे, हमारा ध्यान है बंदे का काम हो जाना चाहिए बढ़िया से एकदम। अब हम जाके डिजाइन पे एफर्ट डाल रहे हैं इन द पास्ट 1 ईयर। उसके पहले तो हमारा डिजाइन पे एफर्ट भी नहीं था। हमारा एफर्ट था भैया फंक्शनैलिटी होनी चाहिए जबरदस्त, सिंपल होना चाहिए, बटन बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, दबाओ तो स्कैन हो जाए। ओके। वैसा कुछ। तो डिफरेंट तो है, थॉट प्रोसेस भी डिफरेंट है, कम्युनिकेशन भी डिफरेंट चाहिए होता है यूएस मार्केट इंडिया मार्केट में। सो लॉट ऑफ थिंग्स आई विल से जो डिफरेंट होती है इन मार्केट्स में। या तो आपके मेंटर वगैरह कौन रहे हैं ये पूरी जर्नी में? फ्रेंड्स, इन्वेस्टर्स, फ्रेंड्स टर्न्ड इन्वेस्टर्स, यही रहे मेजरली। एंड मतलब फॉर मी स्पेसिफिकली if you'll ask my co-founders are my great mentors. Both are very senior to me in terms of experience, in terms of education. So वो मेरे फर्स्ट मेंटर्स हैं। कुछ भी होता है तो मैं वहां जाके लड़ लेता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। एंड वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर ऑलमोस्ट इस साल 10 साल हो जाएगा हम लोग को काम करते हुए साथ में अब। तो चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स आर देयर विद देम, बट आई लुक अप टू बोथ ऑफ देम कि यार मेरे को सिखा दो, कुछ बता दो, समझा दो, या जो भी आपका व्यू है बताओ, आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। ओके। इट मे टेक अ डे ऑफ माई ईगो पे थोड़ा आता ही है ऑब्वियसली। अब ईगो तो सबका होता है, ऐसे तो नहीं कि ईगो नहीं है मेरा भी। ईगो पे आता है कि तू कौन होता है समझाने वाला, बट एक दिन लगता है मेरे को ओके
समझ आ जाता है कि यार सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, जो भी है. They are there. Then obviously some good friends of mine who have become successful founders, they are there obviously when I need them. Then investors तो हैं ही हमारे जो अच्छे हैं investors सारे ही, मतलब I won't say कि we have any issues with any of the investors, I would say. सब ने बहुत support किया अब तक, मतलब whenever we have asked for something we just get like this, मिल जाता है. So yeah. ओके, मैं अगर पूछूं 3 मोस्ट वैल्यूएबल लेसन्स जो आपने इन लोग से सीखा. फर्स्ट तो मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था यार, डोंट बिलीव टिल मनी इज इन द बैंक. राइट. बहुत जरूरी है वो. राइट. सेकंड वाज कीप गुड फाउंडर्स क्लोज टू यू ऑलवेज. मतलब Okay. यू नीड टू हैव 1 or 2 गुड फाउंडर्स ऑन योर साइड who, क्योंकि they have been through this journey. They know it much better than anybody else. ओके. अगर मैं बात करूं कि आपका एक सक्सेस मंत्र क्या है? For me it is कि यार लगे रहो, मतलब लगे रहो, कभी ना कभी तो सक्सेस आ जाएगा. ऐसा नहीं है कि इतने भी गधे नहीं है. आई बी वेरी ऑनेस्ट कि इतने भी लेम नहीं है हम लोग. कुछ तो बना लेंगे. हो सकता है 10 साल नहीं तो 20 साल में बनाएंगे, बट कुछ तो कर लेंगे लाइफ में. दैट इज माई मंत्रा कि यार लगे रहो एंड जस्ट बी देयर. कीप ग्राइंडिंग. वन डे यू विल रीच समवेयर. मेरे से उतना ना वो सोचा नहीं जाता है. पीपल बोलते हैं बी, क्या बोलते हैं, बी लॉजिकल. यार ये होगा, मैं कर लेंगे फिगर आउट. एंड ऑल ऑफ दिस आई कैन से कॉन्फिडेंटली बिकॉज आई हैव सम सॉर्ट ऑफ अ सेफ्टी नेट ऑल्सो. इट्स नॉट कि आई डोंट हैव अ सेफ्टी नेट. अब जैसे आई कम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली. आई डोंट हैव एनी इश्यूज देयर. मतलब कि मेरे को घर पैसे भेजना ये सब इशू नहीं है. आज तो नहीं है भाई, फ्यूचर में हो तो आई डोंट नो, बट आज वो नहीं है. सो आई कैन लिव लाइफ ऑन माई टर्म्स. ओके. कि यार जितना कमाता हूँ उससे बचाता हूँ, उतना उड़ाता हूँ, ओके. उतना स्पेंड करता हूँ मैं. यही मेरा रूटीन है, यही है. तो आई डोंट नीड मच टचवुड फॉर माई सेल्फ टूडे. एंड कि यार मेरे को इतना तो पैसा चाहिए ही, मेरा लाइफ स्टाइल कोई बात नहीं यार, 10,000 के कमरे में रह लेंगे और क्या हो जाएगा ना. इससे ज्यादा क्या हो सकता है. मतलब फॉर द अर्ली ईयर्स ऑफ माई करियर 2015 to 19 मेरा घर का रेंट था ऑन एन एवरेज 9,500 रुपया. ओके. मैं 1 RK में रहता था, 1 रूम किचन में. तो आई एम ओके गोइंग बैक देयर ऑल्सो. थोड़ा अजीब लगेगा कुछ दिन, बट इफ लाइफ प्लेज दैट कार्ड ऑन मी कि यार नहीं तुम नहीं बढ़ सकते आगे, तो वहां चल देंगे रहने के लिए. सो आई हैव, वो रहा है मेरा अभी तक कि यार जो करूंगा मैं अपने बलबूते पे करूंगा. तो आई हैव सीन दैट रूट कि यार अब कुछ नहीं है तो उबर मोटो से भी गया हूं मैं ऑफिस. सालों गया हूं, मतलब एक ऐसा नहीं महीनों गया हूं, 1 साल तक उबर मोटो से गया हूं. पैदल आया हूं वापस कि यार अभी नहीं है उतना, चल लेते हैं, थोड़ा पतले होने का ट्राई कर लेते हैं और क्या. अब वैसे भी हुआ है, बाहर जाना बंद हो गया. मतलब फॉर a year and a half we didn't get our salaries in Okay. Tapme. तो पार्टी करना बंद हो गया, बाहर ही नहीं जाते थे. घर ही में कोई कुछ आ गया तो घर में ही कुछ खा पी लिए, दैट्स इट. तो वो टाइम भी देखा है और ये टाइम भी देखा है कि रोज पार्टी करने जा सकते हो, इतना पैसा है. तो इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. सक्सेस आ जाएगी, जब आएगी तब आएगी, बट ठीक मैनेजेबल है. ओके. या दैट्स. तो अगर मैं बात करूं कि कोई एंटरप्रेन्योर है जो स्टार्ट कर रहा है, जो ये B2C सेगमेंट में देख रहा है, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? क्विक सक्सेस के लिए मत भागो इसमें, क्योंकि B2C इज अ डिफिकल्ट स्पेस. B2C इन इंडिया स्पेसिफिकली इज अ डिफिकल्ट स्पेस बिकॉज इनहिबिशन है ही वो यूजर्स का पे करने वाला. यू वोंट, मतलब अब लोग हमको बोलते हैं कि यार पेमेंट तो डे 1 से लेना चाहिए. भाई B2C ऐप में कैसे ले लोगे डे 1 से पेमेंट आप? B2C ऐप में नहीं हो सकता वो, क्योंकि यू आर, या तो आपका आइडिया बहुत ही तोड़ू है, कुछ तो आपने मचा दिया है अलग लेवल पे, तो अलग बात है. अब आप ये बताओ, मैं एक स्कैनिंग प्रोडक्ट हूं, जब तक मैं एक अडोबी या माइक्रोसॉफ्ट कंपेरेबल ना बना दूं, कोई मेरे को पैसा क्यों देगा? कोई नहीं देगा मेरे को पैसा. राइट. सो इट टेक्स सम टाइम टू टेक मनी फ्रॉम द यूजर टू, सो कि प्रोडक्ट डिजर्व्स दैट मनी. इट विल टेक सम टाइम. तो द जर्नी इज डिफिकल्ट फॉर अ B2C फाउंडर, क्योंकि बहुत टेक ऑलरेडी है गेम में. तो आपको कुछ बनाना है तो या तो आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप फटाफट बना लो, या अगर आप अपना ही ग्राइंड करके बनाना चाहो तो टाइम लगेगा थोड़ा. सो जर्नी डिफिकल्ट होती है B2C की. इंडिया में इन्वेस्टर्स का B2C पे ट्रस्ट भी उतना नहीं है, क्योंकि बड़ी कंपनीज बहुत कम बनी है B2C की इंडिया से.
Okay. मतलब just think and you will not find any big name coming up in your mind जो B2C app business है for example, बहुत कम है. Now players are picking up like Pocket FM है, Seekho है, ShareChat Moj है. These are the B2C apps who are there going good Right. app business में. Right. Conveyance वगैरह में ओला, पेटीएम, फिनटेक वो सब है, क्रेड है. Right. Right. बट B2C ऐप बिजनेस में तो बहुत कम प्लेयर्स हैं हु यू नो आल्सो इंडिया के. Right. राइट. तो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक दैट ग्रिट कि मैं कर रहा हूँ, एफर्ट मार रहा हूँ. इट विल टेक सम money, either your money or investors money. Luckily we got investors money, so we could build it. हमको बोलते क्या अब अपने पैसे से बना लो, तो मेरे पास नहीं है उतने पैसे कि मैं बना पाऊंगा मैं. Okay. So yeah, those are some few things I think we should, like a new founder should know about B2C space specifically, क्योंकि पैसा day one से नहीं आता है. Okay. D2C में आ जाता है क्योंकि आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप कुछ घर में दे रहे हो, उसके वो दे देगा, वो 50 रुपए तो दे ही देगा, 100 रुपए दे देगा वो. बट एक ऐप के लिए 100 रुपए लेना, you would know. मतलब when did you start paying for YouTube Premium? Just think. तो YouTube को आज के दिन में प्रीमियम बेचने के लिए 100 तिकड़म मचाने पड़ रहे हैं, इतने ऐड डालने पड़ रहे हैं. तो आप हमारे जैसे लोगों का सोचो, हम तो कागज 14 लोग की टीम है, वो तो 1400 लोग की टीम होगी. इफ यू थिंक इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, Right. तो YouTube को प्रीमियम बेचने के लिए आज के दिन में एक एक वीडियो में 3-3 ऐड डाल रहे हैं. राइट. So we are a very small company compared to a YouTube or Microsoft or anyone. So time तो लगेगा. Right. It can't be done in a year. It can't be done in 6 months कि मैं 6 महीने में पैसा बनाना शुरू करूँ, नहीं कर पाओगे. Right. स्केल पे तो नहीं कर पाओगे, थोड़ा बहुत जरूर कर लोगे. आई एम नॉट सेइंग जीरो होगा, बट स्केल पे नहीं हो पाएगा, वो टाइम लगेगा थोड़ा. Got it. Yeah. Thank you so much for coming on my channel. It was Lovely great. meeting you, Shreyansh. It was great Yes. having you. Yes. एंड Thank अगर you. आप लोग ने Thank यहाँ you. तक वीडियो देखा है तो ये वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू गाइस.